Dear students, welcome to Genesis. आज के इस वीडियो में we are mainly going to cover concepts of Mendelian dihybrid cross, Mendel's laws of inheritance and mutation. Mendel ने जब dihybrid cross किया था, we have already discussed कि he had taken 2 characters and so 4 traits. So any 2 characters out of the 7 that we discussed, कोई भी आप 2 character लेके start कर सकते हैं. So for today's example, I'm going to take the height of the plant. So let us consider a tall plant with the color of the flower, purple flower, and we cross it with a dwarf plant, white flower. Now जब भी मैंने ऊपर जो भी मेंशन किया है, we know this is the phenotype. So let's quickly write down the genotype. और हमें पता है कि these are pure breeds. That means इनके parents भी वैसे थे, उनके parents भी tall with purple flower थे, dwarf with white flower थे. So ये जो plant होगा, इसके पास there are going to be 2 capital T and 2 capital P for purple flower. यहाँ example होगा small t and small p because these are recessive. Now when this individual will produce gamete, they will produce, it will get halved. So 1 capital T and 1 capital P. Similarly यहाँ पे 1 small t and 1 small p. So in the F1 generation, when these are going to fuse, they will produce an individual जिसका genotype होगा capital T small t, capital P small p. और वो दिखने में कैसा होगा? Tall plant with purple flower. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि why did I write this with small t, small t, small p, small p, please refer to that chart जहां पे मैंने dominant and recessive trait समझा दिया था. Now this is the F1 generation that is produced and we know the formula of F2 generation is F1 into F1. That means इसी F1 plant को हम जब आपस में pollinate करवाते हैं तो F2 generation आता है. So I will write capital T small t, capital P small p, cross capital T small t, capital P small p. याद रखना, this is the most important part of the entire process that we are going to write. आपको बहुत सारे क्वेश्चन बस इसी पार्ट से पूछे जाएंगे. ये जो इंडिविजुअल है, ये दोनों इंडिविजुअल ऑफ कोर्स दे आर आइडेंटिकल, सो इनके गेमीट्स भी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये कितने काइंड्स के गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे. अगर हम देखते हैं एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडिविजुअल, ये टोटल 4 टाइप्स के गेमीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. व्हाट आर दोस? एक होगा कैपिटल T कैपिटल P, एक होगा कैपिटल T स्मॉल p, then it will be small t capital P, small t small p. Similarly, this individual will also produce exactly 4 different kinds of gametes. One will be capital T capital P, another will be capital T small p, another small t capital P, another small t small p. So अब I am going to draw a Punnett square जहां मैं ये 4 और इन 4 gametes के combinations को लिखेंगे and then we will find out the phenotypes and genotypes. So let's quickly do that. Here is the Punnett square and these are the 4 gametes, capital T capital P, capital T capital P, capital T small t capital P and small t small t. Now let's quickly find out what combinations of offsprings are they going to produce. So this will be capital T capital T capital P capital P, capital T capital T capital P small p, capital T small t capital P small p, capital T small t capital P small p. Next one, capital T capital T capital P small p, capital T small p small p, capital T small p capital P, and then capital T small p small p. Third one, capital T small t capital P, capital T small t capital P small p, then small t capital P, and then small t capital P small p. Next one, capital T small p capital P, capital T small p small p, then small t capital P small p, and last one small t small p small p. See, I will suggest you to do it right away with me, otherwise you're going to find it very difficult. See, सबसे difficult part होता है gametes बोलना
एंड उसके बाद ये कॉम्बिनेशन इज वेरी इजी, बट यू आर लकी कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पनेट स्क्वायर बनाने लायक क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं. दे विल नॉट आस्क यू टू राइट दीज कॉम्बिनेशंस. आपको मैक्सिमम जो पूछा जाएगा कि व्हाट आर द गेमेट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन ये 4 गेमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको बस इतना लिखना होता है. इसके बाद हम लोग जो लिखने वाले हैं वो है फेनोटिपिक रेशियो. दैट मींस दिखने में कितने वैरायटी के प्लांट्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं. जैसे जब हमने टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट का फेनोटिपिक रेशियो निकाला था, हमने देखा था वहां पे टॉल एंड ड्वार्फ ही प्रोड्यूस होते थे. हाँ, ये बात है कि देयर वर सम होमोजाइगस टॉल एंड सम हेटेरोजाइगस टॉल. वो जेनोटिपिकली अलग हो सकते हैं, बट फेनोटिपिकली प्लांट्स जब एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस कराया गया था तो 2 ही प्रकार के प्रोड्यूस हो रहे थे इन F2 जनरेशन. आइदर दे वर टॉल और दे वर ड्वार्फ एंड द रेशियो वाज 3:1. अब हम निकालते हैं कि यहां क्या हो रहा है. यहां हमने 2 तरह के पेरेंट लिए हैं. पेरेंट हु आर टॉल विद पर्पल फ्लावर एंड ड्वार्फ विद व्हाइट फ्लावर. सो लेट्स सी यहां क्या प्रोड्यूस होता है. सो पहला जो है हमें दिख रहा है टॉल एंड पर्पल. टॉल पर्पल. Second one also tall purple. So हम इसी में इसे काउंट करते हैं. So this is tall purple number 1. This is tall purple number 2. This again is tall purple. So this is 3. This is also tall purple 4. यहां देखते हैं again tall purple 5. I hope आपको समझ में आ रहा है. अगर 2 कैपिटल T 2 कैपिटल P हो tall purple. अगर 1 कैपिटल T और 1 कैपिटल P हो तभी भी tall purple. ये भी tall purple. No, this is not tall purple. This is capital T small p. This is tall and white. So this is a new variety. So we will write tall white. This is tall white. तो इसको जरा अलग से मार्क करते हैं. Number 1. Then again capital T capital P. That means it is tall purple number 6. This is again tall white. So this is tall white number 2. 2 tall white हमें मिल गया. ये एक tall white है और ये एक tall white है. Now next go to this. Capital T capital P है, तो इसका मतलब this is tall purple number 7. Again capital T capital P है, so this is tall purple 8. This is not tall purple. ये rather हो गया dwarf. ये एकदम अलग एक चीज है. And purple. So यहाँ लिख देते हैं dwarf purple. So ये है dwarf purple number 1. यहां देखते हैं ये क्या बन रहा है. This is again dwarf लेकिन कलर है purple. So it is dwarf and purple number 2. यहां जाते हैं अगेन ये कैपिटल T कैपिटल P है. So it is tall purple number 9. This is capital T small p. So हम लोग इसे बोलेंगे tall and white. So this is tall white number 3. टॉल व्हाइट हम लोग ने ऑलरेडी नंबर 2 किया था. ये रहा हमारा टॉल व्हाइट नंबर 3. अगेन यहां देखते हैं दिस इज अ ड्वार्फ एंड द कलर इज पर्पल. सो दिस इज ड्वार्फ पर्पल नंबर 3. हमें तब कितने ड्वार्फ पर्पल मिले? 3. हमें कितना टॉल पर्पल मिला? 3. हमें कितना टॉल व्हाइट मिला? 3. हमें टॉल पर्पल कितने मिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. टोटल 9 मिला है. और रह गया ये लास्ट. ये क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल पी स्मॉल पी. इसका मतलब ये है ड्वार्फ व्हाइट और ये बस एक बना हमारा. सो फेनोटिपिकली अब हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये दिखता है कि टॉल पर्पल जैसे पेरेंट थे एग्जैक्टली वैसा ही प्रोड्यूस हुआ है वैरायटी. ड्वार्फ व्हाइट जैसे पेरेंट थे एग्जैक्टली वैसा ही प्रोड्यूस हुआ है. बट ये दोनों कौन है? ऐसे तो पेरेंट नहीं थे. ये है टॉल व्हाइट एंड ड्वार्फ पर्पल. दीज आर हाइब्रिड्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. जो आपको सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस में दिखता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं दिखता है. बिकॉज हियर यू हैव कंसिडर्ड 2 कैरेक्टर्स. इसीलिए फेनोटाइप 4 तरह के फेनोटाइप यहां प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड द फेनोटिपिक रेशियो is 9:3:3:1. This is the phenotypic ratio of Mendel's dihybrid cross. याद रखना यहां कुछ चीजें एकदम अलग है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. क्विकली एक बार देख लेते हैं. Here we consider 2 characters obviously, so we are taking 2 pairs of traits. पहली बात. सेकंड, यहां जो F1 जनरेशन है जस्ट लाइक मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही सिर्फ F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ. जब हमने F2 जनरेशन किया तब हमने देखा कि जो गेमीट्स हैं पर इंडिविजुअल देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेमीट्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग. तो 4 and 4 इनके कॉम्बिनेशंस जब हमने किए तो हम देख रहे हैं टोटल 16 का एक पनेट स्क्वायर बनता है. जब हमने इस पनेट स्क्वायर में जेनोटिपिक एंड फेनोटिपिक कैरेक्टर्स को वैल्यूज को पुट किया, हमने देखा 4 फेनोटिपिकली 4 वैरायटी प्रोड्यूस हुए हैं. एंड दे वर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ 9:3:3:1. याद हमें ये रखना है जो पेरेंट में डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल एंड पर्पल वो 9 है, और जो पेरेंट में रिसेसिव कैरेक्टर था विच वाज ड्वार्फ एंड व्हाइट वो 1 है, और जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स बने हैं टॉल व्हाइट एंड ड्वार्फ पर्पल ये 3 में है.
अगर आपको कभी हाइब्रिड समझने में कंफ्यूजन हो या एग्जाम के समय यू हैव टू राइट आंसर्स क्विकली, इसका एक ट्रिक है, आप टॉल के साथ व्हाइट लिखिएगा एंड ड्वार्फ के साथ पर्पल, तभी आपको इजीली मिल जाता है हाइब्रिड्स क्या है। एग्जाम में आपको सिर्फ फेनोटाइपिक रेशियो लिखना होता है। मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस के जेनोटाइपिक रेशियो को वी डू नॉट राइट बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, सो यू डू नॉट हैव टू राइट दैट। सो यू मस्ट नो दैट F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, यू मस्ट नो व्हाट आर द gametes that are produced by the F1 plants. Third, you should be able to write the phenotypic ratio without Punnett square, बिना Punnett square के आपको phenotypic ratio लिखना आना चाहिए। वो क्या? With this we finish Mendel's dihybrid cross. Now we will discuss Mendel's laws of inheritance. मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद टोटल 3 लॉज प्रपोज किए थे। फर्स्ट वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसे समझने का बेस्ट वे है, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जरा समझते हैं क्विकली। जहां एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट को जब हमने क्रॉस करवाया था तो F1 जनरेशन में एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट हुआ था। द प्लांट वाज टॉल बट इट वाज हेट्रोजाइगस। सो अब जरा देखते हैं, इन अ हेट्रोजाइगोट दैट मीन्स एन इंडिविजुअल जिसका कंडीशन हेट्रोजाइगस है, लाइक F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे दे वर ऑल हेट्रोजाइगोट बिकॉज वो टॉल थे लेकिन उनके पास 2 कैपिटल टी नहीं था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी था। सो इन अ हेट्रोजाइगोट द डोमिनेंट अलील विल एक्सप्रेस इट स्ट्रेट एंड द रिसेसिव अलील विल बी मास्क्ड। वेरी क्लियरली यहां से समझ में आ रहा है, डोमिनेंट अलील कौन है? कैपिटल टी, उसका ट्रेट क्या है? टॉल। सो इन अ हेट्रोजाइगोट द डोमिनेंट अलील विल एक्सप्रेस इट स्ट्रेट, इसीलिए वो प्लांट टॉल बना, बट द रिसेसिव एलील गेट्स मास्क्ड। स्मॉल टी किस लिए होता है? स्मॉल टी कंडीशन हमें पता है कि तभी जाके एक ड्वार्फ प्लांट होता है। सो फॉर अ डोमिनेंट ट्रेट टू एक्सप्रेस, इट कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ हेट्रोजाइगोट कंडीशन बिकॉज यहां 2 एलील है बट द डोमिनेंट एलील विल ओनली एक्सप्रेस। ऑफ कोर्स इसके सिवा हमें पता है कैपिटल टी भी टॉल होगा, बट फॉर अ रिसेसिव एलील टू एक्सप्रेस इट स्ट्रेट इट हैज टू बी इन अ होमोजाइगस कंडीशन, तभी जाके वो ड्वार्फ बन सकता है। So I'll quickly repeat this. In a heterozygote, the dominant allele will express it straight and the recessive allele will be masked. Then the second law that he proposed was law of segregation. According to law of segregation, at the time of gamete formation, the 2 alleles separate and each gamete receives only 1 allele. इसका एग्जाम्पल इसी से देखते हैं। सोचो 2 कंडीशन है, कैपिटल टी। जब ये इंडिविजुअल गेमीट प्रोड्यूस करेगा, they are going to pass the 2 T's individually to 2 gametes, मतलब कैपिटल टी एक गेमीट में जाएगा और एक कैपिटल टी एक गेमीट में। हाँ, इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं, सिंस दिस इंडिविजुअल इज अ होमोजाइगोट, सो दिस इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस ओनली 1 वैरायटी ऑफ गेमीट, सारे गेमीट्स कैपिटल टी वाले ही होंगे, ठीक। लेकिन व्हेन वी गो टू अनदर कंडीशन वेयर वी सी अ हेट्रोजाइगोट में भी हम जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन ये एलील सेपरेट हो जाएंगे एंड हर एक गेमीट को बस एक ही एलील मिलेगा। सो दिस टेक्स कैपिटल टी एंड दिस टेक्स स्मॉल टी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, this heterozygote has produced 2 different kinds of gametes, 2 different kind of gamete produce किया है। और एक एग्जांपल देखते हैं, small t again a homozygote, so this homozygote at the time of gamete formation will produce 2 similar gametes, मतलब दोनों के पास ही कैपिटल टी होगा। So at the time of gamete formation the 2 alleles, ये जो 2 एलील है they separate and each, सबसे important point, each gamete receives only 1 allele, एक गेमीट के पास बस एक ही एलील जाता है। These 2 were proposed after Mendel's monohybrid cross. जब उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया उसके बाद इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रपोज किया। इसमें उन्होंने पहले ही बोला एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्या, 2 pairs of traits। ध्यान से देखना, 2 pairs मतलब टोटल 4 ट्रेट, जैसे अ टॉल प्लांट विथ पर्पल फ्लावर, ड्वार्फ प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर। तो मैंने टोटल 4 ट्रेट मेंशन किया, टॉल, ड्वार्फ, पर्पल फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। सो एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 pairs of traits, the alleles of different trait के allele are distributed to the gametes independently of each other। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? चलो एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल पी, स्मॉल पी। ये F1 जनरेशन का मैंने एग्जांपल लिया है। दिखने में कैसा होगा? इट विल बी अ टॉल प्लांट विथ पर्पल फ्लावर, बिकॉज हमें पता है यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस लागू होता है, बिकॉज ऑफ विच ओनली द डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, द रिसेसिव एलील इज मास्क्ड। क्वेश्चन है अब ये क्या गेमीट प्रोड्यूस करेगा? जब ये गेमीट प्रोड्यूस करेगा तब ये बोला जा रहा है कि सी देयर आर टोटल 4 ट्रेट्स दैट यू आर टॉकिंग, टॉल, ड्वार्फ, पर्पल, व्हाइट, राइट। इन 4 ट्रेट्स को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं, जब ये गेमीट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये इंडिपेंडेंटली कोई भी किसी के साथ जा सकता है। तो ये इंडिविजुअल इसीलिए 4 डिफरेंट
डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेमीट प्रोड्यूस कर सकता है। एक के पास जाएगा एक कैपिटल टी, एक कैपिटल पी, तो कैसा होगा ये गेमीट? इसके पास एक टॉल और एक पर्पल एलील आया। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल पी, मतलब टॉल एंड उसके साथ व्हाइट एलील आ गया। थर्ड ऑप्शन हो सकता है स्मॉल टी कैपिटल पी ड्वार्फ पर्पल फ्लावर, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज स्मॉल टी स्मॉल पी, दैट मीन्स ड्वार्फ एंड व्हाइट फ्लावर। सो वेरी क्लियरली एट द टाइम ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड, द एलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द गेमीट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसा नहीं कि टॉल के साथ हमेशा पर्पल ही जाएगा, टॉल के साथ पर्पल जा सकता है, टॉल के साथ व्हाइट का एलील भी जा सकता है, ड्वार्फ के साथ पर्पल जा सकता है, ड्वार्फ के साथ व्हाइट का एलील जा सकता है। सो दीज वर द थ्री लॉज दैट ही proposed, and out of which you please remember this law of dominance, law of segregation, they are also applicable in law of during the dihybrid cross. Dihybrid cross में ये तीनों लॉ ही लागू होते हैं। अगर मैंने पूछा ऐसा कौन सा लॉ है जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लागू नहीं होता है, then law of independent assortment, because it strictly talks about a condition where two pairs of traits are being inherited, जो कि सिर्फ dihybrid cross में होता है। मेंडल्स लॉज तो समझ गए, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन विद टाइम वो इजी हो जाएगा, बार बार पढ़ने से वो आपको समझने में भी जल्दी से आप समझ जाएंगे। लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ और इसका एप्लीकेशन क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सी मेंडल्स के जितने भी लॉ थे ना, उनको अप्लाई करने के बाद सबसे बड़ी बात जो आप कर सकते हैं विच इज़ यू कैन प्रेडिक्ट व्हाट? प्रेडिक्ट कॉम्बिनेशंस। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशंस? इन प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स, एंड इसके साथ आप इनके फ्रीक्वेंसीज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट द कॉम्बिनेशंस इन द प्रोजेनी, और आई शुड रादर से द न्यू कॉम्बिनेशंस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रोजेनी ऑफ हाइब्रिड्स, एंड उनका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसे समझने का बेस्ट उपाय, फॉर एग्जाम्पल हमने वही टॉल एंड पर्पल फ्लावर वाले प्लांट को अगर हमने क्रॉस किया है एक ड्वार्फ एंड वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ, देख के ही you can now predict the combinations that are going to be produced. What combinations can be produced? There will be a tall purple plant just like the parent. There will be a dwarf and white plant just like the parent. But what are the hybrids that can be produced? A tall plant with white flower and a dwarf plant with purple flower. So what are these? These are new combinations in the progeny. और आपको इनका frequency भी पता है, because you know that in the dihybrid cross, the frequency in Mendel's dihybrid cross, the frequency was 9:3:3:1. So जो hybrids produce होते हैं वो usually equal frequency 3:3 के frequency में produce हो रहे हैं। So by that knowledge you can actually tell about the new combinations that are going to be produced and also predict the frequency in which they are going to be produced. Second क्या है? Such informations are very important to who? हमारे लिए important होगा if we are plant और animal breeders। अगर कोई plant और animal breeder है, अगर उन्हें कुछ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं या न्यू वैरायटी ऑफ हाइब्रिड एनिमल्स प्रोड्यूस करने हैं, उनके लिए ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, इससे व्हाट यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स विथ वेरी एसेंशियल कैरेक्टर्स। मतलब ऐसे कुछ प्लांट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस नॉलेज, जिनके कैरेक्टर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन जो क्रॉप्स के बिजनेस में है, तब जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, देन टेम्परेचर रेजिस्टेंट, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्लांट की क्वालिटीज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ऐसे राइस के क्वालिटीज़ आप प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्विक टू कुक होगा। सो ऑल दीज कैन बी पुट टुगेदर फॉर डेवलपिंग सच वेराइटीज which are very very important in the market right now. Okay, now let's understand what is mutation. Basically कहा जाता है किसे, if there is a change in gene या genes, अगर जीन या जीन्स में चेंजेस हुए हैं तो, और in shape of chromosome, और इट्स नंबर, दैट मीन्स क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज हुआ हो, शेप में कोई चेंज हुआ हो, या किसी जीन या जीन्स में चेंज हुआ हो। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। सोचो एक डीएनए का एक पोर्शन है AGT
CCGT, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी हम लिख सकते हैं TCAGGCA। सो जो ये वाला पार्ट ऑफ द DNA इज अ जीन, एंड व्हाई एम आई कॉलिंग इट अ जीन, मैंने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था, बिकॉज प्रोबेबली दिस इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। तो सोचो ये वाला पोर्शन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो है प्रोटीन 1, वेरी वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, किसी भी काम के लिए। सडनली यहाँ पे एक म्यूटेशन होता है और ये जो जगह है जहाँ पहले T था वहाँ पे G आ जाता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पे आ जाता है C। नाउ दिस gene will not produce protein 1, it will either not produce protein 1 or may produce a protein which is different, protein 2। सो मुझे चाहिए था प्रोटीन 1, या तो इस म्यूटेशन के लिए वो प्रोड्यूस होना ही बंद हो जाएगा, दैट विल कॉज हार्म टू माय बॉडी, या कोई और प्रोटीन प्रोड्यूस हो जा रहा है विच कैन ऑल्सो कॉज हार्म टू माय बॉडी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज म्यूटेशन। क्यों? बिकॉज हियर देयर इज अ चेंज इन वन जीन, ऐसे मल्टीपल जीन्स में हो सकता है, एंड दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर बॉडी। सेकेंड, मैंने कहा इट कैन ऑल्सो कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। किसी एक कारण से जो क्रोमोसोम ऐसा दिखना चाहिए वो अभी ऐसा दिख रहा है, सो दिस इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द क्रोमोसोम। और एक मैंने क्या बोला? इन इट्स नंबर। इसका एक इजी क्विक एग्जांपल सोचो, एक ह्यूमन मेल, उसमें हमें पता है XY होना चाहिए द सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर किसी मेल में ऐसा एक कंडीशन हो गया XXY, या सोचो एक फीमेल जिनके पास 2 X क्रोमोसोम होने चाहिए, उनके पास सिर्फ X and O कंडीशन हो गया। दीज आर द कंडीशन वेयर देयर इज अ चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, एंड नॉट नेसेसरीली हमेशा XX XY, ऑल दोस 44 क्रोमोसोम्स जो आपके ऑटोसोम्स हैं, जो आप उसमें कोई चेंज हो गया हो। सोचो किसी के पास 44 ऑटोसोम्स की जगह 45 ऑटोसोम्स हो गया, या 43 ऑटोसोम्स हो गए। सो दिस इज चेंज इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, दिस इज अगेन म्यूटेशन एंड इट विल एडवर्सली अफेक्ट दैट इंडिविजुअल। सो इसका एक एग्जांपल हम लोग को अभी सिलेबस में पढ़ना होता है, विच इज सिकल सेल एनीमिया। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन है जहां हमारे जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल, जो बेसिकली बाइकॉन्केव होते हैं शेप में, दे सडनली बिकम सिकल शेप्ड, ऐसा शेप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट है, आप उसे जानते हैं, द नेम ऑफ द पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट इज वाई आवर ब्लड इज रेड इन कलर। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये फॉल्टी हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होने लगता है बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल, द रेड ब्लड सेल, इट लूजेज इट्स बाइकॉन्केव शेप एंड बिकम्स सिकल शेप्ड। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा? जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है उसका लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 to 124 डेज, लेकिन अगर सिकल शेप्ड हो जाता है इट सर्वाइव्स ओनली फॉर 10 to 20 डेज। सेकेंड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी जितनी ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू दिस। थर्ड, दिस कैन वेरी स्मूथली गो थ्रू योर ब्लड वेसल्स, स्क्वीज करके, बहुत फ्लेक्सिबल है। दिस इज नॉट फ्लेक्सिबल, दिस इज अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये आपके ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, एंड दिस कैन लेटर ऑन कॉज डैमेज टू मेनी ऑर्गन्स। सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन, अ जेनेटिक म्यूटेशन, एंड इसमें क्या होता है? द हीमोग्लोबिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इज फॉल्टी विच रिजल्ट इनटू द चेंज इन द शेप ऑफ द RBC। और एक एग्जाम्पल जो बुक में बताया गया है, नॉट एग्जाम्पल, एक कंडीशन, एक सिचुएशन जब आपको म्यूटेशंस हो सकते हैं व्हेन यू आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस। दैट मीन्स अगर आपके बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन है, एक्सपोज हो रहा है, हार्मफुल रेडिएशन, देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ सफरिंग फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशन। उसका एग्जांपल उन्होंने दिया था वर्ल्ड वॉर 2, जब इन द ईयर 1945 में जापान के हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, देन पीपल हु सर्वाइव्ड दे हैड टू अंडरगो मेनी डिफॉर्मिटीज बिकॉज उनके जीन्स म्यूटेटेड हो गए थे एज दे वर एक्सपोज्ड टू दीज रेडिएशंस, एंड वो डिफॉर्मिटीज आज भी वहां देखा जाता है आफ्टर सो मेनी ईयर्स। क्यों? बिकॉज दे हैव अफेक्टेड द जीन्स एंड दे आर गेटिंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। So with this we finished this chapter. अभी आपका सबसे important काम है to go and watch my analysis of this chapter. It will give you idea about the important sections that you must study. And we are going to meet soon with my next video on the next chapter. Thank you.